Thank you, Shumantro. Friends, as Shumantro told you, it was just a fortnight ago that I wrote a 250 pages book on the Maestro Shyam Benegal, which has about 55,000 words in it. But believe me, this morning when Neeraji told me that I have to speak here today, I did not have a word. I did not know what to say here. So I thought it's better that I make some notes and then will come in front of you. I don't know where to begin and talk about which Shyam Benegal. Shyam Benegal, the filmmaker, Shyam Benegal, the teacher, philosopher, Shyam Benegal, the guy who not only made films about villages and Mufassil towns, but also helped little villages and these little towns to get roads and schools and hospitals and water and electricity. Shyam Benegal, the lawmaker, who in his 6 years in Rajya Sabha tweaked the Constitution of India, or Shyam Benegal, the storyteller, who after retiring from the Rajya Sabha made a 10-hour long form on the making of the Indian Constitution. Shyam Benegal, the chap who fought battles for the rights of the landless laborers in the villages, or Shyam Benegal, the man who fought to get dignity to the LGBTQ community. Shyam Benegal, the man, gentleman, which is becoming a rarity in our society today. I think the people in this August gathering all know about Shyam Benegal, the filmmaker. At times the writer, at times the producer, but all the times the director of 24 feature films that he made in his life, 2 feature-length documentaries, scores of short films, and 700 plus ad films. Still, one thing I would like to emphasize here, when I came to Bombay and joined the film industry, when Shambhavi was making the discovery of India in 1988, one refrain that I often heard in the mainstream industry was that, "Arey, Shyam Benegal वो फिल्में इसलिए बना पाता है क्योंकि उसको तो भारत सरकार पैसा देती है." And when I reminded them that, "Sir, what are you talking about? Shyam Benegal made his first 8 films with the producers like Blaze and Filmwalas of Shashi Kapoor ji. It was only in his 9th film, Arohan, for which the Marxist government of West Bengal supported him in making that film." And people used to be surprised, "अच्छा ऐसा?" तो ये एक नोशन उनके बारे में क्रिएट कर दिया गया था इस शहर में, इस इंडस्ट्री में. As a teacher and philosopher, he was matchless. आप उनके साथ घंटों बैठ सकते थे. जो उपनिषद जो हमारे हैं, और उपनिषद को का अर्थ होता है कि गुरु के चरणों में बैठना, तो आप उपनिषद के साथ उनके चरणों में घंटों बैठ सकते थे. चरणों में तो बैठने नहीं देते थे, उनके सामने की कुर्सी पे, और दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं था जिसपे कि वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान न दे दें और आप कुछ वहाँ से अमीर होकर न निकलें उनके पास में 2-3 घंटे गुजार के. His fast and vast reading was an abiding addiction with him, और वो नशा उनका जाते जाते भी नहीं गया. सारी किताबें त्याग देने के बाद में, सारी किताबें जनता के लिए एक लाइब्रेरी में दिल्ली में दे देने के बाद भी वो नशा नहीं गया. और जो नई किताब की खुशबू का जो नशा था, और तरह तरह की नई चीज़ें जानने का जो नशा था, चाहे वो नए कॉन्सेप्ट्स हो, नई टेक्नोलॉजी हो, नई बातें हो, नई चीज़ें हो, नई किस्म की कहीं कुछ पॉलिटिकल घटना, वो उनका नशा कभी नहीं उतरा.
मेरे फैमिली में एक जोक था, जब भी मैं बिना काम के श्याम बाबू के साथ जाके बैठता था ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, अगर काम नहीं चल रहा हम लोगों का किसी फिल्म पे, तो मैं थर्सडे चला जाता था उनके साथ ही बैठ के उनको सुनता रहता था। तो उस दिन मैं फ़ोन पे अपनी फैमिली को कहता, क्या है भाई आज का प्रोग्राम? आज मेरा यूनिवर्सिटी का दिन है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो श्याम बेनेगल वॉज दैट यूनिवर्सिटी where, like American university, you could go to any department that you like to listen to the lectures. You did not have to go to the sociology and psychology because they were registered subjects like India. तो उस यूनिवर्सिटी में जाना और बैठना जो है एक अलग ही कमाल की बात हुआ करती थी। 4 days ago, when we were at the funeral parlor to bring him to Shivaji Park crematorium, an unknown man came in and said, are you the family? We said, yes, we are the family. And he told us that he had heard the news about 7 o'clock the night before. And he rushed from a village 40 miles from Tirupati, somehow traveled to Tirupati, somehow was able to take a flight in the morning and landed there before even the family could properly come there. और हमने उनसे पूछा कि भाई आप इतना क्यों हड़बड़ा के भागे, आप क्यों आए? बोले हमारा पूरा गांव रात भर सोया नहीं है और हमारे गांव में एक चौराहा है श्याम बेनेगल के नाम पे, हमारे गांव में एक अस्पताल है श्याम बेनेगल के नाम पे, हमारे गांव में एक सड़क है श्याम बेनेगल के नाम पे, और पूरे गांव ने तय किया कि मुझे जाना चाहिए और मैं, सुरेंद्र नाम था उनका, और मैं यहाँ भेजा गया हूँ, पूरे गाँव को मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले मैं स्टूडेंट था हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में, जब मैं उनसे मिला और वो एमपी थे और उन्होंने हमारे गांव के लिए अपने एमपी लाड से पैसा दिया, जिससे आज हमारे गांव में पानी आता है, हमारे गांव में सड़क है और हमारे गांव में एक अस्पताल बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द मैन। आई नेवर सॉ हिम सेइंग नो टू। Sometimes these people from the different villages and small towns used to come to the office when we were working, but he'll meet them. They usually came in delegations. He met them and more often than not granted them whatever little things that they needed. I remember especially it was so touching. There is a district adjacent to this town of gold and glitter and glamour where you and I live. This district is called Palghar, and you know Palghar is full of the Warli tribals. And you also should know, if you don't know already, that about 8 years ago, about 600 children used to die there every year because of malnutrition. Next to Bombay, the city of gold. And Shyam Babu especially took interest in going to their villages and trying to do things that they could fight this starvation and let their children not die. This was the man Shyam Benegal was. Friends, you know that in our film fraternity, when people are nominated to Rajya Sabha, most of the time they don't attend the parliament. Even if they attend the parliament, they don't utter a word. They're not interested in what is happening. Leave apart asking some informed questions and leave apart tabling a bill. Two of the exceptions are sitting here with us today. First, Shabana Azmi, and then Javed Akhtar Sahab. But very much like them, because Shabana ji preceded him to the Rajya Sabha, Shyam Benegal was one man whose dharma was to attend the parliament whenever it was in session. He did not miss a single session. Most of the time you have to be a silent spectator, because nominated लोग तो हल्ला गुल्ला मचाने का मजा भी नहीं लेते हैं। तो वो पार्लियामेंट जाते थे अपना धर्म समझ के, and he was one of the rare people who had tabled a big bill to bring succor to the landless laborers and get them some small parcels of land. And this was unheard of till that point of time. Nothing happened to that bill, but at least he did his karma.
At least he did fight for them. Similarly, both in the High Court and in the Supreme Court, with a few of his friends, he filed a clutch of petitions to get the LGBTQ community the dignity and to remove the tag of a criminal from their lives. How many have the audacity of doing this, or have the fursat of doing this, or have the thought of doing this? This filmmaker was a gentleman in every sense of the word, whether it is socially, intellectually, politically. I don't need to tell you about his intellectual and political integrity, but I must give you an anecdote of his social gentlemanness, if there is a word like that. एक दिन हम ऑफिस में उनके साथ बैठ के किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, मैं और शमा जैदी जी, जिनके साथ ही हमने उनके साथ काम किया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी ये लीडर थी और ये हमेशा हमारी टीम की लीडर रही हैं। हम लोग काम कर रहे थे और कुछ मथाड़ी जो नहीं जानते हैं, वो गांधी सफ़ेद टोपी वाले कुछ वर्कर्स होते हैं जो सफ़ेद ढीला पजामा सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, गांधी टोपी लगाते हैं, और यूजुअली वो हेड लोड वर्कर्स होते हैं। और नीचे एवरेस्ट बिल्डिंग में वो बहुत आते थे क्योंकि वहाँ ट्रक्स खड़ी होती थी पहले, मिड डे की और बाद में भी। तो वो 5-6 लोग अचानक घुस के चले आए अंदर। साहब हैं? हाँ हैं, अंदर आ जाओ। और अंदर घुस गए, उनको कुछ ज़्यादा रुकना भी नहीं था और मैं एकदम से घबराया कि क्या कुछ एजिटेशन है, क्या हो गया है, नीचे किसी से गाड़ी भिड़ गई, हुआ क्या है भाई? और पता चला उनमें से एक की बिटिया का ब्याह था उनके गांव में, परभानी में, और वो इनविटेशन कार्ड लेके आए थे। उनका तो यही तरीका होता है कि भाई मूंगटी वाली चप्पलें आपने देखी होंगी, चमड़े की कोल्हापुरी, वो पहने वो आ गए अंदर और उन्होंने अपना मराठी में बोलना शुरू किया। आधी चीज़ें श्याम बाबू ने समझी नहीं समझी, लेकिन जैसे कार्ड देखा तो श्याम बाबू ने उनको बैठाया और बैठा के पर्स खोला, उनको कुछ दिया उनकी बेटी के लिए, ये मेरी तरफ से लेके जाओ। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि साहब मैं बहुत खुश होता अगर आप आ जाते, और परभानी तो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है और गाँव, वहाँ से हम आपको लेने आ जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल सच सच कहा कि नहीं देखो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ काम लगे हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे होने वाले दामाद को विश ज़रूर करूँगा। बात आई गई, वो लोग उनके पैर वैर छू के वहाँ से चले गए। एक हफ्ते बाद जब मैं फिर उनके साथ काम करने आया, दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो देखा कि वो वही इनविटेशन कार्ड मराठी का हाथ में लिए बैठे हैं और एक चिट्ठी डिक्टेट कर रहे हैं फ्रेनी को, अपनी सेक्रेटरी को। और वो चिट्ठी इसी बारे में थी कि आपकी बेटी का 3 दिन बाद ब्याह है और मैं आपको और आपकी बिटिया को और होने वाले नाम देखे कि नाम क्या है, दामाद का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, ये लिख करके वो पूरी चिट्ठी डिक्टेट कर रहे थे कि आप उन दोनों का ब्याह जो है वो सफल हो और बहुत खुशियाँ मिले दोनों को, उस बच्ची को और उस बच्चे को। वो चिट्ठी डिक्टेट कर रहे थे। तो मैं, दिल मेरा खुशी से भी फूल गया और गम से भी बुझ गया एक साथ। And I asked myself that whether I will ever have this decency. पैसा तो दे दिया था ना उसको, वो आया था, पैर छू के चला भी गया था, फिर क्या ज़रूरत थी मुझे कि मैं इतनी डिसेंसी दिखाऊं? एक हफ्ते बाद भी मैं याद रखूं कि उसकी बिटिया की शादी कब है और उसको एक ख़त भी लिखूं उस गांव में, उस बेपढ़े लिखे एक कुली को। ये डिसेंसी क्या मुझ में कभी आएगी? जो धीरे धीरे मुझ में क्या आज के ज़माने से गायब होती जा रही है। आप लोग खुद अपने आप से सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। Friends, I can go on and on about this man who was, as I sometimes call, the last gentleman of our fraternity. My heart today goes to Pia and to Neeraji, who for the last 2 years have been fighting this battle to save this man and to elongate his life as far as possible. But every good thing must come to an end. And we know what happened 5 days, 6 days back. My heart also goes to the staff who is all sitting there of the Shyam Benegal Sahyadri film, who for years and years, some of them for dozens of years, some of them for more than 20 years, जिन लोगों ने श्याम बाबू के साथ बैठ के काम किया है, जो पीछे मुझे सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं,
वो दे हैव बीन ऑल्सो लेफ्ट bereft। और उन सारे शाह मेडिकल जी के प्रोडिजीज के लिए हमें किसका नाम लूँ? नसीर भाई से शुरू करूँ कि शबाना जी की बात करूँ, कि अशोक मिश्रा जी की बात करूँ, कि इला जी की बात करूँ, के जी की बात करूँ, दयाल साहब जैसा आदमी जो उनके साथ सेकंड फिल्म पे काम कर रहा है, शमा जी की बात करूँ, वो सब आज एक तरह से अनाथ हो गए हैं। हम सब के फादर फिगर ही नहीं, वो असल में हम लोगों के फादर की जगह उन्होंने ले ली थी। और वो न सिर्फ हमारे, जैसा कि जिक्र किया था यहाँ पे प्रहलाद जी ने, न सिर्फ हमारे उस्ताद थे, हमारे मालिक थे जिनके हम लोग स्लेव थे, बल्कि वो सचमुच हमारे बाप बन गए थे। हमारी फैमिलीज की इतनी फिक्र रखते थे। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ आज से 20 साल पहले कानपुर में। वो कोमा में था, मैं चला गया, और वो उन दिनों बोस की शूटिंग कर रहे थे आरे कॉलोनी में। जंगल में नेटवर्क नहीं आता था, तो रोज़ 1 घंटा लंच के टाइम पे लंच ना करके बाहर आते थे, मुझसे बात करते थे, फिर जाते थे शूटिंग करने। इस तरह का पिता आजकल कहाँ मिलता है दोस्तों? I know time is of essence, so I must stop here, but not before I recite a poem which I wrote for him in my book. This one-page poem makes my first chapter of the book. It's called Salam, Shyam Babu. अंकुर, अंकुर एक रोपा तुमने और कर डाला निशांत। अंकुर एक रोपा तुमने और कर डाला निशांत, मंथन की बांधी भूमिका कर अनुग्रहम संभ्रांत। अनुग्रहम और कंडूरा भी उनकी 2 फिल्में थी, तमिल में कंडूरा और हिंदी में अनुग्रहम। अंकुर एक रोपा तुमने और कर डाला निशांत, मंथन की बांधी भूमिका कर अनुग्रहम संभ्रांत। एक जुनून से कलयुग तक आरोहण तुमने खूब चुना, मंडी सजाई देखा त्रिकाल, सुषमन का अंतरनाद सुना। सूरज का 7वां घोड़ा ले मम्मो ने सरहद पार करी, मेकिंग ऑफ महात्मा देख खिले सरदारी बेगम समर और हरी भरी। जुबेदा में तुम लेके आए एक रॉयल राशि जादू जहान, जुबेदा में लेके आए तुम एक रॉयल राशि जादू जहान, और तुरंत फिर कह डाली नेताजी बोस एक गुमनाम दास्तान। वेलकम टू सज्जनपुर ने जोड़ा इस लंबी रेल में न्यू डब्बा। वेलकम टू सज्जनपुर ने जोड़ा इस लंबी रेल में न्यू डब्बा। अब और कहें क्या तुमसे हम, वेल डन अब्बा, वेल डन अब्बा। मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन ने एक नया इतिहास बना डाला। मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन ने एक नया इतिहास बना डाला। 90 सालों के नौजवान ने बांग्लादेश हिला डाला। अब भी नामुमकिन इनका रुकना, तूफान भी कहीं थमते हैं। अब भी नामुमकिन इनका रुकना, तूफान भी कहीं थमते हैं। मन से साधु, तबीयत से राजा, ये लोग अब कहाँ बनते हैं? और जैसा नसीब भाई ने कहा, वो अभी भी रुके नहीं होंगे। वहाँ भी बैठे हुए वो अपने सारे साथियों के साथ एक नई फिल्म की योजना बना रहे होंगे। सलाम श्याम बाबू, माय मेंटर, my God, my guide, my philosopher. I dare not call you my friend, but everything to me, my guru. Salam to you. Thank you very much.